Hello students. So I think you all are enjoying your online teaching. So I am Anjali and I am going to start today's new topic, what is democracy and why democracy. It is the chapter number 1 of ninth class from the political science. So in this chapter we will discuss some new facts about the democracy. So first point is what is democracy, in which we will do some definition of the democracy, and next is about the different countries which have the democracy, like, but their features are different. And second point is the features of democracy, in which the what is the basic feature, what is the basic key features of the democracy, and third point is the merits of democracy, in which why we learn that why democracy is the good form of government, and last point is demerits of democracy. What are the demerits, what things should be not in democracy, and what is the uh, such a things which are not good in democracy. So merits and demerits. First we will start our chapter with the question, what is democracy? So let's start. हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विथ अ सिंपल डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कहते हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इलेक्शंस हेल्ड होते हैं और हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, एंड देन दे आर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. एंड one more thing, that every government in contemporary world wants to be called a democracy. आज कंट्री में जितनी भी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, दे वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वो सब अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना पसंद करती है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो. चाहे वहाँ पे डेमोक्रेसी रियल फॉर्म में है या फिर नहीं. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretend to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना चाहती है. अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल्स करेंगे. उन एग्ज़ाम्पल्स को हम कंपेयर करेंगे द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, और वो कंट्री जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें क्या वो चीज़ें रियल फॉलो होती हैं या फिर नहीं. हम यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, मैक्सिको की बात करेंगे, कि सब कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जो रियल में वहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है उससे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. इट मीन टू से that in every country the definition of democracy is different. हर कंट्री में डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी द वास्ट एरिया ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कैसी है, कैसी हो सकती है और कैसी होनी चाहिए. So let's start with our second point, the key features of the democracy. So student, after the definition of the democracy, we are starting our next point, features of democracy.
I have made some flow chart for you. So we will describe first the key features of democracy, and after that we will compare that features with another countries which are known to be as a democratic. So you will decide that it is real democratic country and not. So first key feature is मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर. एक मेन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में वो लिए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उन रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं. सो in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. Final decision making का जो भी power है वो डेमोक्रेसी किसे देती है? उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं. Now I am taking the example of Pakistan. I am explaining the government, about the government of Pakistan. First, we will describe what happened in the past. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. When 1999 में मिलिट्री जो कमांडर थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसे तो ओवरथ्रू कर दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कंट्री का वो डिक्लेयर कर दिया. लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दी? प्रेसिडेंट में. And in 2002 held a referendum in the country that guaranteed him a 5-year extension. उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया 2002 में और अपने पावर्स को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया. यानी उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया. Pakistan media, human rights organization and democracy activities said that the referendums was based on malpractices and fraud. अब वहाँ कुछ लोगों का ऐसा मानना था, स्पेशली मीडिया जो थी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा मानना था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये जो रिफरेंडम किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया, उस पे उन्होंने कई सारे गलत तरीके और फ्रॉड से किया ये सारा चीज़ें. एंड इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर that amended the constitution of Pakistan. उसके बाद उसे लीगल फ्रेमवर्क बना दिया गया, यानी कि उसे लीगली अप्लाई कर दिया गया पाकिस्तान पे. According this order, the Pakistan can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officer. अब यहाँ पे देखिए नेशनल असेंबलीज भी है और प्रोविनेंस भी है, इलेक्शंस वहाँ पर भी हो रहे हैं, बट सारे जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के, वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. ऐसा अमेंडमेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविनेंशियल असेंबली. इस लॉ के पास होने के बाद वहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबलीज़ के हों चाहे वो प्रोविनेंशियल असेंबलीज़ के हों. सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ हिमसेल्फ. अब हम यहाँ पे बात 2002 की कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ मेल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया गया पाकिस्तान में और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, जिससे पावर जो है वो मिलिट्री यानी सिक्योरिटी काउंसिल्स के पास आ गए. हम देख सकते हैं अभी भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, लेकिन उनके डिसीजंस फाइनल नहीं होते हैं.
लास्ट एंड फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है मिलिट्री कमांडर्स का। सो अब हमारा ये जो की फीचर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स की, जो भी मेजर डिसीजंस हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो कौन लेता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर हम देखें इस फॉर्म को पाकिस्तान से हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं है। तो देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि वो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है, बट क्या वहाँ पर रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या नहीं? सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड गिव योर व्यूज़ टू मी. Is it their real democratic country or no about Pakistan? So let's continue the key features of the democracy. First key feature was the major decisions by elected leaders, in which we have given the example of Pakistan. Now second key feature is the free and fair election. Free and fair elections are the second and very important feature of the democracy, क्योंकि democracy में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शंस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कर सकें बिना डरे, और अपने इच्छा से वो जिस भी कैंडिडेट को पावर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो सेकंड इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Now डेमोक्रेसी मीन्स ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट इस बार इलेक्ट हुई तो 5 साल बाद दोबारा वही गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है. अगर रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कहें तो गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है इट मीन्स वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है. अब हम बात करते हैं राजस्थान की. हम सबको पता है राजस्थान में हमारे राजस्थान के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या फिर वो हर एक गवर्नमेंट को चांस देते हैं रूल करने का ताकि उनकी जो सारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके. अगर आप पास्ट उठा के देखते हैं तो हमारे राजस्थान में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है. एक बार एक पार्टी को मिलता है, कई बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को. सो अगर हम ये कहें कि राजस्थान के जो वोटर्स हैं वो बहुत अवेयर हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें किन्हें वोट देना है. कहीं ना कहीं अगर एक ही पार्टी को बार बार पावर मिलता है तो वो अपने पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर सकती है. तो और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उसकी ये पूरी कोशिश रहती है कि वो बहुत अच्छा वर्क करे पीपल के लिए, ताकि लोग उसे पसंद करें और उसे वोट करें. तो यहाँ एक इलेक्टोरल जो कंपटीशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसे? पीपल्स को. बात कर रहे हैं हम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. अब यहाँ भी हम एक एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उसकी बात करेंगे. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ चाइना की. इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 6 ईयर. चाइना में हर 6 ईयर के बाद इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली, बट द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. लेकिन जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो हमेशा कौन सी पार्टी की होती है? कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी गवर्नमेंट है. वहाँ पे एक ही पार्टी है. किसी भी कैंडिडेट को अगर खड़ा होना है इलेक्शंस में तो उसे अप्रूवल लेना होता है कम्युनिस्ट पार्टी का. बिफोर consenting election a candidate need to approval of Chinese Communist Party. तो यहाँ पे लोगों के पास चॉइस नहीं है, एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी को आपको क्या देना है? वोट देना है, वो भी उस पार्टी के कैंडिडेट को जिसे पहले अप्रूवल मिलना ज़रूरी है कम्युनिस्ट पार्टी का. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है मैक्सिको. इन मैक्सिको इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड एवरी 6 ईयर सिंस 1980. यहाँ पर भी मैक्सिको में भी हर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. सिंस 1980 से हो रहे हैं, बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वुन द इलेक्शन. लेकिन सिंस 1980 से एक ही पार्टी वो इलेक्शंस जीत रही है. इलेक्शंस पार्टी वाज नोन टू बी यूज
मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। ऐसा माना जाता है कि ये पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कई सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करती है। यहाँ पर रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम इसलिए नहीं कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में रूलिंग पार्टी भी हार सकती है, ये प्रोविज़न है। यानी कि अगर रूलिंग पार्टी हार रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस वहाँ पर हो रहा है। अब सिंस 1980 से मैक्सिको में पीआरआई है और पीआरआई ही वो इलेक्शंस जीत रही है अभी तक, तो उसे हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पर हेल्ड होते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's